Okay, chalo, we'll start here. As we all know, like we have started with the chapter number 13, and the name of the chapter was monetary policy. What we have seen for the monetary policy, we have seen the meaning of monetary policy and the objectives of monetary policy. So everybody knows, like whenever we are saying about the monetary policy, it means we are talking about the money. Okay, so we are talking about the money supply in the economy and how to control the money, that all decision is being taken through the monetary policy only. But who will going to frame the monetary policy? This monetary policy will be framed by whom? Tell me, student. कौन बनाता है monetary policy? RBI. Yes, it has been framed by RBI. yes Reserve Bank of RBI में yes RBI will going to frame the monetary policy. Okay, then but the controlling part is totally on that. But how why RBI want to control over the money supply? मतलब ऐसा क्यों होना? अगर पैसा आ रहा है इकोनॉमी में selected भी ना, let that money should be there with the people. But the main objective of RBI is what? They should maintain the value of money. Okay, this is what the main objective. अगर पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, so there will not be any value for that money. Okay, so anyhow we have to continue with the maintaining of the value of money. इसके तभी हम लोग कहते हैं, तभी at that time only the demand for money would be there. और ये सब कंट्रोल करने का जो राइट्स है, that is only given to the RBI and they can do it through the monetary policy. Then we have seen the objectives of monetary policy कि monetary policy जब फ्रेम किया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मतलब क्या दिमाग में रखे RBI will going to decide that ये चेंजेस करने चाहिए करके. ओके, दैट इज ऑल अबाउट लाइक मनी का न्यूट्रलिटी वहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए. Then they should think about the economic growth, whatever changes they are doing into that monetary policy. Then again, they should think about the balance of payment equilibrium, exchange stability should be there, full employment level should be there. Then again, whatever the inequality is there in between the wealth distribution, so that kind of inequality should be reduced. And then more and more financial expansion, sorry, more and more financial institutions should be established. And that was the main objective of RBI while determining the monetary policy. अभी हम लोगों ने देखा कि हाँ ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये सब काम आरबीआई कर सकती है जो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा. लेकिन उनके पास इससे क्या टूल्स है, मतलब ठीक है मनी सप्लाई करना है, बट इससे क्या टूल्स है कि जिसके वजह से वो ये सब कर पाएगा. So that today we will going to see, and this is called as your instrument of monetary policy. मतलब through that way only RBI can have a control, RBI can achieve the objectives for the economic growth and development. Okay, so whatever instrument they are saying, it has been basically divided into two parts. One is the quantitative techniques of credit control, and other one is the qualitative techniques of credit control. Okay, so today we're going to see the quantitative techniques. What they have given here, since the supply of money consists predominantly of bank deposit, policies designed to control the money supply are concentrated on the activities of commercial bank. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मनी सप्लाई के बारे में जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक, लेकिन सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पब्लिक के कॉन्टेक्ट में नहीं आती है. So whatever decision is taken by the central bank, first it will going to affect the commercial bank. Okay, and as per and commercial bank is the one कि जो public के साथ ज्यादा connected है. Okay, तो अगर RBI कुछ चेंजेस करता है तो कमर्शियल बैंक को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है. एंड देन कमर्शियल बैंक में जो भी चेंजेस होते हैं, यस, कमर्शियल बैंक में जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर पब्लिक के ऊपर वो अफेक्ट करना स्टार्ट होता है. ओके, सो रिमेम्बर दिस पार्ट, आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक के लिए रूल नहीं बनाएगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए रूल बनाने वाला है. So that way we have to think. Okay, so see the most commonly used quantitative technique include the following. The first one is the bank rate, and then the open market operation, and then variable reserve requirement. चलो, now we're going to see what is bank rate. Bank rate is also called as discount rate. बैंक रेट को कहा जाता है डिस्काउंट रेट भी. अभी ये बैंक रेट किसने लगाया हुआ है पहले ये मुझे बताओ. Who will going to apply this bank rate? Commercial bank or the RBI? बताओ मुझे. RBI.
हाँ, आरबीआई लगाएगा किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। चलो, अभी बैंक रेट आरबीआई क्या लगाता है? बैंक रेट जो आरबीआई लगाता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट आल्सो। एंड एज आई एम अगेन टेलिंग यू, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग सोचेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आरबीआई ये इंप्लीमेंट कर रहा है कमर्शियल बैंक के ऊपर अफेक्ट हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट को देखना है। ओके, सी द बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स that the central bank gives to the commercial bank। देखो, बैंक रेट क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट हमारे लिए जब वो यूज किया जाएगा, so that is called as interest rate। but when this interest rate is been imposed on the commercial bank by the RBI, then उसको इंटरेस्ट नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है बैंक रेट। ओके, तो ये बैंक रेट जनरली किसके ऊपर लगाया जाएगा? when commercial bank will be taking the loan from the central bank, तो सेंट्रल बैंक वहां पे उनका चार्जेस लेता है। सो दैट चार्जेस विल बी कॉल्ड एज योर बैंक रेट। ओके, लोन के ऊपर जैसे हम लोग देखो लोन के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया ऐसे बोलते हैं ना, तो सेम वैसे ही कि जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देने वाला है तो वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन दे रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर बैंक रेट। अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट, अगर वो बैंक रेट ज्यादा रहेगा तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? टेल मी ऑन दैट। अगर सेंट्रल बैंक, हाँ कम लेंगे। हाँ कम लेंगे मैम। yes, तभी वो क्या करेंगे? लोन कम लेंगे। देखो, it is the minimum rate at which the central bank of a country provides loans to the commercial bank of the country. Bank rate is also called as a discount rate because the central bank provides finance to the commercial bank by rediscounting the bills of exchange। मतलब उन्होंने पैसा मांगा और उनको दे दिया, वैसे नहीं रहता है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? कमर्शियल बैंक का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता है तो उसको डिस्काउंट के हाँ डिस्काउंट के फॉर्म में उनको पैसा दिया जाता है। A bank borrows from the central bank when it has too few reserves to meet the reserve requirement. This might occur if it has made too many loans or it has experienced unexpectedly high withdrawals. When the central bank marks such a loan to a bank, makes such a loan to a bank, the banking system has more reserve than it otherwise would, and these additional reserve allow the banking system to create the more money। उन्होंने क्या कहा है कि ओके मतलब उनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना पड़ता है, एंड ऑन दैट बेसिस ओनली द कमर्शियल द सेंट्रल बैंक विल गोइंग टू प्रोवाइड लोन टू द सेंट्रल कमर्शियल बैंक। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे लोन लेने की जरूरत कब पड़ती है कमर्शियल बैंक को? मतलब उन्होंने कहा कि अगर कभी कभार अनएक्सपेक्टेडली हाई विड्रॉवल होता है, सी दे आर थ्रू देयर एक्सपीरियंस दे नो लाइक एक पर्टिकुलर मंथ में कितना पैसा विड्रॉ लोग करते हैं, कितना कैश लेते हैं, और कितने मतलब कौन से महीने में ज्यादा कैश विड्रॉवल होता है, कौन से महीने में कम विड्रॉवल होता है। दैट आइडिया दे आर गेटिंग थ्रू देयर एक्सपीरियंस। ओके, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अचानक से बहुत सारे लोग पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और उतना कैश बैंक के पास अवेलेबल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? बिकॉज जो भी पैसा रहता है बैंक हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनटू सम अदर पार्ट। बिकॉज हम लोग भले वहां पे पैसा रखते हैं, हम लोग अपना पैसा बैंक के पास रखते हैं, लेकिन बैंक हमारा पैसा एज इट इज वहां पे रखता नहीं है। वही पैसा बैंक उनके लिए प्रॉफिट कमाने के लिए यूज करता है। ओके, तो दे आर इन्वेस्टिंग इनटू सम अदर, अदरवाइज वही पैसा किसी और को लोन के फॉर्म में दिया जाता है। तो दो दे विल नॉट गोइंग टू हैव मच कैश विद देयर बैंक, उनका एक लिमिटेड अमाउंट ही कैश में रहता है। तो उन्होंने कहा है कि कभी कभार अगर ज्यादा विड्रॉवल हो जाता है, ज्यादा डिमांड फॉर मनी हो जाता है कि लोग जो अपने अपने अकाउंट का पैसा वो मांगने के लिए आ जाएंगे, तो इसी टाइम पे वी कैन नॉट से नो ना। मतलब अगर कोई बैंक नहीं बोलेगा नहीं है आपका पैसा, तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया। नो बडी विल गोइंग टू ट्रस्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर, शायद उनके अगेंस्ट कंप्लेंट चला जाएगा। तो फॉर दैट रीजन ऐसा ट्रस्ट लोगों का कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी लोन लेने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो जो लोन दिया जाता है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको डिस्काउंट किया जाता है एंड उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट और वी कैन से बैंक रेट लगाया जाता है। सी द सेंट्रल बैंक कैन अल्टर द मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द डिस्काउंट रेट। A higher discount rate discourages banks from borrowing reserve from the central bank. Commercial banks raise their lending rates, which results in less borrowing and consequently reduces the money supply in the economy. Conversely, a lower discount rate encourages banks to borrow from the central bank
and increase the money supply. A central bank uses discount rate lending not only to control money supply but also to help financial institution when they are in trouble. तो मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक रेट, हाँ, बैंक रेट जो लगाया जा रहा है कि उनको परेशान करने के लिए वगैरह, ऐसे नहीं रहता है. दे वांट टू कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई, बट साइड बाय साइड दे रियली वांटेड टू हेल्प द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो इफ दे आर इन द ट्रबल. क्योंकि कैसे भी करके अगर कोई भी एक बैंक का नुकसान होता है तो वहां पे आरबीआई को क्वेश्चन किया जाता है. नुकसान होता है इन से अगर कोई एक बैंक बराबर कैश वहां पे नहीं रख पाई और लोगों का जो नीड्स है, लोगों का खुद का पैसा नहीं दे पाई, तो वहां पे आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन आता है कि लाइक यू आर नॉट सुपरवाइजिंग और कंट्रोलिंग ओवर दैट बैंक, इसके लिए ऐसा हुआ करके. सी वॉट एवर वी आर सेइंग कि इतना सारा एनपीए के वजह से वो बैंक बंद हो गया करके, फ्रॉड हो गया करके, तो भले आपको लगता रहेगा कि वो बैंक का नुकसान हुआ, लेकिन वहां पे आंसरेबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रहती है कि आप लोग क्यों नहीं मॉनिटर कर रहे थे ये बैंक के ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे करके. ओके, so therefore it is always that the RBI is trying to help the financial institution whenever they are in the trouble, and therefore they are trying to give the rediscount. लेकिन उन्होंने और एक यहाँ पे चीज कही है कि अगर वो लेंडिंग रेट, अगर सेंट्रल बैंक अपना लेंडिंग रेट कम रखता है तो क्या होता है, कमर्शियल बैंक आर गेटिंग मोटिवेशन टू डिमांड फॉर और टू बोरो मोर मनी फ्रॉम द आरबीआई, तो उनसे वो ज्यादा पैसा लेती है. अगर वहां पे लेंडिंग रेट कम है, उन्हें अगर उनको ही खुद कम बैंक रेट पे या फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है, तो जब पब्लिक के लिए पैसा आता है, यू नो, पब्लिक के लिए पैसा कहाँ से आता है, कमर्शियल बैंक से आता है. अगर कमर्शियल बैंक को ही वही पैसा सेंट्रल बैंक से कम रेट पे मिला है, तो कमर्शियल बैंक वो पैसा जब पब्लिक को देती है तो भी वो कम रेट में ही देती है. ओके, लेकिन अगर वही पैसा सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट पे मिलेगा तो पब्लिक के लिए भी लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा. सो दिस इज व्हाट somewhat they will be indirectly, like central bank indirectly controlling over money supply by rediscounting the bills of exchange, or we can say by changing, by increasing or decreasing the bank rate here. So in India, the bank rate is the rate at which the RBI is ready to buy or rediscount the bills of exchange or other commercial paper. This rate has been aligned to the marginal standing facility rate and therefore changes automatically as and when the MSF rate changes alongside policy repo rate changes here. तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि इंडिया में जो बैंक रेट रहता है, तो यहाँ पे वो बैंक रेट इसको कहा जाता है कि व्हेन आरबीआई इज रेडी टू बाय मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कमर्शियल पेपर से कमर्शियल बैंक के पास जो उनके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको वो खरीदने के लिए तैयार होता है या फिर उनको रीडिस्काउंट करने के लिए तैयार होता है, वो अगर वो उस दैट वे इफ ही इज रेडी टू परचेज दोस थिंग, ऑन दैट बेसिस ओनली ही विल गोइंग टू प्रोवाइड द मनी सप्लाई. इसके लिए कहा जाता है कि जब आरबीआई से डिक्लेयर करता है ना कि चलो अभी मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्हाट वी कैन से सेल कर रहा हूँ वगैरह, तो उस टाइम पे सारे बैंक उस चीज को प्रेफरेंस देते हैं खरीदने के लिए. भले उनके पास का पैसा चला जाता है लेकिन फिर भी बैंक उसको खरीदते हैं. क्यों? बिकॉज जिस बैंक के पास ज्यादा कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये सब होता है, तो वो बैंक के पास ज्यादा सिक्योरिटी रहता है, उसके हिसाब से बैंक का वैल्यू ज्यादा बढ़ता है. because they in future whenever there will be any kind of a difficulty, those banks will not going to face the what we can say cash scarcity. उनके पास कैश अवेलेबल होगा इमरजेंसी बेसिस पे भी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक बैंक के पास वो होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए. ओके, so let's see here बैंक रेट कैसे एक्चुअली काम करता है. so here you can see बैंक रेट रिडक्शन that will going to increase the money supply. कैसे बैंक रेट कम किया आरबीआई ने. ओके, आरबीआई ने बैंक रेट कम किया, देन बैंक रेट कम होने की वजह से कमर्शियल बैंक बोरोविंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. बैंक रेट कम किया करके अभी कमर्शियल बैंक ने क्या किया, कमर्शियल बैंक ने उनका बिल्स और उनका व्हाट वी कैन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल पेपर उनको लेन करके उसके बेस के ऊपर उन्होंने ज्यादा पैसा लिया. ओके, तो कमर्शियल बैंक ने जो लोन लिया सेंट्रल बैंक से वो इंक्रीज हो गया. वो इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा भी ज्यादा आ गया. तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा आ गया करके कमर्शियल बैंक विल अगेन गोइंग टू लेंड द मोर मनी
And as commercial bank will going to lend the more money, it means what? The people will going to get the more loan, and as they will going to get the more loan, so it means the money is there with the people's hand, and that is indicating that the money supply has increased. समझा स्टूडेंट आपको? बैंक रेट कम होने की वजह से मनी सप्लाई कैसे बढ़ा? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अभी उन्होंने यहाँ पे सेम वही दिया है लेकिन थोड़ा ऑपोजिट वे में, लाइक बैंक रेट अभी इंक्रीज किया उन्होंने। बैंक रेट इंक्रीज किया मतलब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी लगाया जाएगा। ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो कमर्शियल बैंक बोरो भी कम करेंगे आरबीआई से। अगर वो लोन ही कम लेने वाले हैं तो वो कमर्शियल बैंक के पास खुद ही बहुत कम पैसा है कि जो वो पब्लिक को प्रोवाइड करे करके, तो पब्लिक के लिए भी लेंडिंग कम हो जाएगा। तो पब्लिक के लिए लेंडिंग कम हो जाएगा, सॉरी लेंडिंग रहेगा फिर भी, लेकिन वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहेगा। मतलब जो तुम लोन लेने वाले हो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहेंगे। so your that public will not going to purchase the loan which will be at very high rate of interest। तो जैसे पब्लिक लोन नहीं लेने वाले तो अल्टीमेटली लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा नहीं रहेगा, एंड देन योर मनी सप्लाई विल गोइंग टू फॉल दियर। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट? हाउ डज द बैंक रेट अफेक्ट हियर? कैसे वो काम किया मनी सप्लाई के बारे में? आरबीआई का एक डिसीजन की वजह से पूरा इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे फ्लक्चुएट हुआ? एबल टू अंडरस्टूड? यस? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay, see, now what are the limitation here? The bank rate policy can succeed only if a well-organized money market exists in the economy. Okay, मतलब उन्होंने क्या कहा है कि बैंक रेट तो है, चलो आरबीआई ने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इसको सक्सेसफुल कब कहा जाएगा? जब लोगों के पास में बैंकिंग हैबिट्स रहेगा, देयर विल बी मोर मनी मार्केट, एट दैट टाइम ओनली इट विल गोइंग टू हैव द गुड रिजल्ट। अगर लोगों के पास वो बैंकिंग हैबिट ही नहीं रहेगा, लोगों के मतलब उनका अकाउंट ही बैंक में नहीं रहेगा, so that will not going to create any impact। अगर आरबीआई वहां पे कुछ भी चेंजेस कर रहा है तो वो थोड़ी पब्लिक को अफेक्ट होने वाला है। ओके, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि अपना बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, मनी मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर मनी मार्केट के थ्रू, जैसे नाउ इट इज आई कैन से कि यस, whatever changes the RBI is doing, that will going to affect us because we all are used to our banking, and we all are doing all kind of a transaction through the Paytm, then again we can say to the GPay, then phone pay, that all things we are using, matlab we all are preferring to keep our money into the account and we are ready to do the transaction with those kind of a thing। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी बहुत सारे मतलब मनी मार्केट इन इंडिया आई कैन से इट इज क्वाइट डेवलप वन, and suppose if whatever changes the RBI is doing, so that will going to affect on us very easily। And then it is useful during the times of inflation, but it does not fulfill its purpose during the time of recession or depression। उन्होंने कहा कि रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम पे बैंक रेट ज्यादा नहीं काम कर पाएगा, लेकिन जब इन्फ्लेशन रहेगा उस टाइम पे बैंक रेट बढ़ाना विल बी मोर beneficial so that the money supply can be in a control। But I don't think so, like why they are saying like it will not be possible during the time of recession and depression। अगर recession and depression के time पे भी loans provide किए जाएंगे कम rate of interest पे, so people will going to definitely demand that loan and they will going to improve themselves। हाँ, but ये बात तो सही है कि like the people has to be in a risk position, मतलब वो लोग they should ready to take a risk, and अगर उनका रिस्क वहाँ पे सक्सेसफुल होता है देन इट इज गुड। तो उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम पे, बट यस व्हेन देयर विल बी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इट विल गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन हियर, open market operation। So what exactly happened in open market operation? How the open market operation increases or decreases the money supply, that we will see now। See, a central bank conducts open market operation when it buys or sells government securities or bonds। These include both outright purchase or sale of government securities, that is for the injection or the absorption of liquidity। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली क्या बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द बॉन्ड। अभी आप मुझे पहले ये बताओ कि ये क्यों खरीदना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड? ये जो बाइंग एंड सेलिंग होता है, चलो ये सोचो कि आरबीआई सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड, तो वो कमर्शियल बैंक ने क्यों खरीदना चाहिए? बताओ मुझे क्या उसका इंपॉर्टेंस रहेगा कमर्शियल बैंक के लिए?
to maintain the SLR. To maintain the, देखो मैंने आप SLR, statutory liquidity. to maintain the SLR, नहीं देखो मेंटेन द एसएलआर इज ओके, एसएलआर तो मेंटेन होता है बिकॉज मिनिमम उनको वहां पे एसएलआर मेंटेन करना ही पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा भी वो लोग क्यों खरीदना चाहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। एसएलआर एवरी बैंक हैज टू मेंटेन, दैट इज ट्रू, वो होता ही है, बट अगेन व्हाई द कमर्शियल बैंक रियली वांटेड टू परचेज दोस काइंड ऑफ सिक्योरिटी। मैंने आपको क्या कहा बैंक रेट एक्सप्लेन करते हुए कि दिस काइंड ऑफ कमर्शियल पेपर, दिस काइंड ऑफ बॉन्ड विल बी क्वाइट यूजफुल बिकॉज जितना किसी बैंक के पास वो सिक्योरिटी रहता है तो वो बैंक के पास कभी भी कैश स्केर्सिटी नहीं आता है। ड्यूरिंग देयर इमरजेंसी पीरियड दे विल इजीली गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम द आरबीआई बाय सेलिंग दोस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज और द कमर्शियल पेपर। ओके, तो ये वही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाता है, आरबीआई डिक्लेयर करता है नाउ आई एम सेलिंग नाउ आई एम सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड, वो उसको सेल भी करेगा, उसको परचेज भी करेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, whenever somebody will going to ask you what is open market operation, then you have to say that in the open market operation the buying and the selling of government securities or the bonds by the RBI is happening। ठीक है, ये मार्केट में किसको सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को। इसको सेल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। ओके, उसको बाय भी कौन कर सकता है, सेंट्रल बैंक ऑल्सो। तो लेकिन सेंट्रल बैंक ये ट्रांजैक्शन किसके साथ करता है, कमर्शियल बैंक के साथ। ओके, सो दिस वे इट शुड बी क्लियर टू यू। और ये सब क्यों करना है, मतलब क्यों कमर्शियल बैंक को वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा उनके पास सिक्योरिटी रहेगा, सो वेन एवर दे आर फेसिंग एनी कैश स्कैर्सिटी, तो उसको सेल करके या फिर उसके ऊपर डिस्काउंट लेके वो लोग अपने पास कैश अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, ये उसका इंपॉर्टेंस है, इसके लिए वो खरीदना हर एक कमर्शियल बैंक उसको खरीदना चाहती है। See, to increase money supply or expand credit, it buys bonds, and to decrease money supply or contract credit, it sells securities or bonds. The rupees paid by the central bank, that is Reserve Bank of India, for the securities or bond increases the number of rupees in the economy. Some of these rupees may be held as a cash and some are deposited in the bank. Each rupee held as currency increases money supply by exactly 1 rupee. Each rupee deposited in a bank increases the money supply to an even greater extent because it creates reserve and therefore the amount of money that the banking system can create. To reduce the money supply, the central bank does the opposite. It sells the securities or the bonds here. See how it will going to happen. Open market purchase. जब यहाँ पे ओपन मार्केट में परचेसिंग होता है, मतलब सेंट्रल बैंक जब खरीदता है तो उसके वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। हाउ इट इज, द सेंट्रल बैंक बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन ये किससे ले रहा है, कमर्शियल बैंक से। ठीक है, देखो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक के पास अगर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत पहले कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से खरीदा हुआ था, अगर वही सिक्योरिटी अभी सेंट्रल बैंक उनसे खरीदता है तो उससे क्या होता है, रिजर्व इन द सिस्टम इंक्रीज होता है, मतलब सेंट्रल बैंक के पास अभी रिजर्व बढ़ जाता है। रिजर्व बढ़ जाना मतलब क्या, उनके पास अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बढ़ जाना, किसके पास, आरबीआई के पास। ओके, लेकिन जैसे रिजर्व इन सिस्टम बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक का लेंडिंग भी उन्होंने कहा है कि वो भी बढ़ जाएगा। वो कैसे रहेगा, बिकॉज सेंट्रल बैंक विल गोइंग टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड उसके जगह पे वो कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, तो कमर्शियल बैंक को पैसा बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज मिल जाएगा एंड सो दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द मनी सप्लाई बिकॉज कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा। अभी है ओपन मार्केट सेल। जब सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटी सेल करता है तो क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक ये जो सिक्योरिटी वो सेल करेगा तो क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज को खरीदता है, तो वो फ्री में तो नहीं खरीदेगा, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो पैसा कहाँ पे चला गया, सेंट्रल बैंक के पास चला गया और कमर्शियल बैंक का पैसा कम हो गया बिकॉज अभी उनके पास सिक्योरिटीज आ चुका है। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया, इसके लिए दे विल गोइंग टू लेंड द लेस मनी and as they will going to lend the less money to the public, the money supply will going to fall again. Okay, open market operation are easy to conduct and can be used to change the money supply
by a large or small amount on and with any day without major change in the banking laws or regulation. Therefore, open market operation is the tool of monetary policy that central bank uses often. Okay. अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या परचेसिंग एंड सेलिंग होता है, ये मुझे बताओ. Tell me. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड. ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, ये क्या इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए, क्या उसको टू फायदा? maintain surplus in the cash हाँ, to and maintain create the reserve. yes, to maintain the surplus cash. Very good. Okay. Now the next one here. अगर मतलब ऐसा कुछ है क्या कि only central bank will going to sell those security, commercial bank अपना वाला security central bank को sell कर सकता है? Yes or no? No, yes, ma'am. Yes, they will going to sell because यहाँ पे yes, they will going to sell because क्या होता है कि सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक वो सिक्योरिटी लेता है, और जब कमर्शियल बैंक को लगता है कि मुझे भी पैसा चाहिए तो वही सिक्योरिटी वो सेंट्रल बैंक को सेल भी कर सकता है. ओके, सो इवन कमर्शियल बैंक कैन परचेस, बट दिस यहाँ पे जो भी परचेसिंग एंड सेलिंग रहता है दैट इज ओनली हैपनिंग इन बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक. ओके, तो देखो अभी मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ कि कमर्शियल बैंक सॉरी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज खरीद रहा है मतलब सिक्योरिटी किसका कम हो रहा है, कमर्शियल बैंक के पास वाला या फिर सेंट्रल बैंक वाला? Central bank. Central bank. once again I am telling you, सेंट्रल मैम बैंक, कमर्शियल बैंक. हाँ सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से खरीद रहा है, सिक्योरिटीज खरीद रहा है. Commercial bank. हाँ, तो कमर्शियल बैंक का सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास चला गया है, तो कमर्शियल बैंक का सिक्योरिटी कम होता है, लेकिन उस जगह पे सेंट्रल बैंक उसको फ्री में खरीदेगा क्या? यस, फ्री में खरीदेगा. No, ma'am. नो मैम. ठीक है, सेंट्रल बैंक उसके लिए कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, और वही पैसा अगर कमर्शियल, मैंने क्या कहा कि जब भी कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, बिकॉज if they will going to have the money with them, then only they will be in a position to provide more loan to the public. और अगर पब्लिक को लोन देना ज्यादा दे रहे मतलब वहां पे इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है. Are you getting me? So this is the way the open market operation, when the central bank will going to buy the security from the commercial bank, it will lead to the increase in money supply. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? और इसके अपोजिट वैसे कि जब सेंट्रल बैंक सेल करेगा, देखो अभी एक और नया सिचुएशन आप लोग मुझे एक्सप्लेन करते जाओ. जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो अभी कमर्शियल बैंक उसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, पहले ये मुझे बताओ. विल दे गोइंग टू बाय? खरीदेगा मैम. यस, खरीदेगा. तो खरीदेगा उनके लिए मैम. अच्छा है. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, उनसे वो सिक्योरिटीज खरीद लिया, तो पैसा अभी कौन किसको देने वाला, पहले ये मुझे बताओ. Commercial bank, central bank. कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक. वेरी गुड, कमर्शियल बैंक विल गोइंग टू गिव दिस टू द सेंट्रल बैंक. ठीक है, तो अभी पैसा कम हो गया कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक का पैसा कम हो जाता है, सो इट मींस व्हाट, दे विल नॉट गोइंग टू हैव मच मनी टू लेंड टू द पब्लिक. पब्लिक को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है अभी ज्यादा, तो अगर वो लोग लोन ही कम प्रोवाइड करेंगे तो मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में कम ही हो जाएगा. So this is what the way the open market operation will lead to the control over the money supply. Okay. So what are the limitation here? Commercial bank expand and contract credit according to the prevailing economic and the political circumstances, at not merely with the references to their cash reserve. ओके उन्होंने यहाँ पे लिमिटेशन ये कहा है कि कभी कभार कमर्शियल बैंक भी इतने स्मार्ट होते हैं कि जो भी लोन देना है नहीं देना है, इट विल ऑल, दे विल नॉट गोइंग टू से कि लाइक सेंट्रल बैंक परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है, चलो भाई एडवांटेजेस ले लो करके. ये तो रहता ही एक पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसके साथ में और एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, द कमर्शियल बैंक आर स्टडिंग द मार्केट एंड व्हेन दे फील कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, कि हाँ चलो ये टाइम पे मुझे ये जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए करके, एट दैट टाइम ओनली दे विल गोइंग टू डिमांड फॉर मनी. भले हम लोग बोलते कि नहीं एसएलआर मेंटेन करना है, जितना सिक्योरिटी रहेगा उतना सेफ रहेगा, so they need to purchase,
but every time they will not going to purchase or sell. It will all depend upon the market situation, how much profit they are earning. अगर उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे मनी सप्लाई करने करके, then obviously they will going to purchase the they will going to sell the security. ये सब भी बात वहां पे अफेक्ट होती है. It means the market situation is also going to affect. And then when the commercial bank cash balance increases, the demand for loans and the advance should increase. This may not happen due to economic and political uncertainty. Yes, उन्होंने कहा है कि अगर कमर्शियल बैंक सेल करता है सिक्योरिटी और उसकी वजह से अगर कैश बैलेंस उनके पास इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे उन्होंने उसके थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस में भी इंक्रीज होना चाहिए. लेकिन जो भी होता है, it should not be under the pressure of economic and the political uncertainty. मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए वहां पे. So this is what their point of view. So this is all about we have seen on the open market operation and the bank rate. अभी नेक्स्ट तुम्हारा क्वांटिटेटिव बाकी है. दिस इज वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट. वो बहुत इजी है, आप सबको पता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है. वो होने के बाद में we will start with the qualitative. Okay, so next lecture we will going to see what is exactly the cash variable reserve requirement, and then we'll going to see the qualitative techniques of credit control. Okay, now I'm going to take your attendance. I hope all of you have given the roll number. Yes, from roll number 1 to 10, I can see roll number 1 and then 3. इसमें 1 and 3 only. Okay, 1 to 10 में और कोई नहीं ना? 8. Okay, Devika. Yes, Devika. No one is there. 11 to 20 में I can see the roll number here 13. दो 13 है यहाँ पे. दिनेश तेरा रोल नंबर 11 है मेरे इसमें. 11 and then 13 and then 16 then 19. Okay, that's it. From 21 to 30, I can see the roll number. Who are all there? 23, 25, 26, 27, and then 30. Okay. Then from 31 to 40, I can see 31, 32, and then 34, 34. Okay. Then 41 to 50, I can see the number 41, and then 45, then 46, 47, 48, 49. Okay. Then from number 51 to 60, I can see 53, 57, okay, and then 60. And from 61 to 70, I can see the roll number here, 61, 62, 63, 66, 67, 68. From 71 to 80, I can see the roll number here, 73. Okay, only 73 I can see. Then from roll number 81 to 90 I can see the roll number 82. 91 to 100 I can see the roll number here 92. निकिता ने भी 92 लिखा है, सरफराज ने भी 92 लिखा है. मैम 91. 91. ओके, शायदा ने भी. यस, सरफराज का क्या रोल? सरफराज सरनेम इज शेख. शेख सरफराज कहाँ पे रहेगा फिर? शेख सरफराज नहीं दिख रहा है तेरा रोल नंबर. ठीक है, आगे देखती हूँ. मैम हाँ, लास्ट 94. लास्ट ईयर 92 था मैम. क्या अभी आप लास्ट ईयर ना आप 94 94 है उसका? नहीं नहीं, ये तो सिद्दीकी मोहम्मद का है. हाँ, मैं अपना बता रहा हूँ मैम. मैम अच्छा, मैं सरफराज का ढूंढ रही हूँ. मैम ऐड नहीं किया, आप ऐड नहीं किया अभी तक.
अच्छा तेरा रोल Name- नंबर ऐड नहीं हुआ है, पर तुझे क्यों वो हाँ। लिखा है? तो चलेगा चलेगा रुक। लास्ट ईयर का मैम। और तू कितना होशियार, तू हाँ। लास्ट ईयर का रोल नंबर अभी भी लिख के आ रहा है। अभी ये नहीं किया ना उसमें। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं करके हाँ, लास्ट में लिख के अब मैं रिजल्ट देखा भी नहीं उसका, रोल नंबर क्या है उसमें। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐड कर हाँ। देती हूँ। तो मैं चेक कर। ओके 100 देन 105, एक मिनट मैं जब तक इनका दे देती हूँ अटेंडेंस। 105 Okay. के बाद में 106, 107 एंड देन 112, 115, 115 के बाद में दिख रहा है 120। आरती माने का रोल नंबर क्या है? आरती माने किसी का रह चुका है क्या स्टूडेंट अटेंडेंस? मैं सबसे सरफराज का देखती हूँ। आरती माने 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 किधर रहेगी? MA आरती माने यस 43। हाँ और तेरा क्या सरफराज ना? Yes, ma'am. सरफराज शेख। इधर किधर तो नाम कभी लेट एडमिशन लिया नहीं। है सरफराज? हाँ लेट है। हाँ फिर मैं इधर दे दूँ, तेरा 124 दे दूँ? चलेगा मैम। हाँ अभी के लिए हम लोग दे देते हैं। आई थिंक तेरा रोल नंबर चेंज हाँ। फिर भी। ओके ओके। इज योर क्लास टीचर? आई डोंट नो मैम। Yes, class, can you tell me here? Who is the class teacher? Jabir sir, sir. हाँ तो जाबिर सर से एक बार पूछ लेना सरफराज। हाँ ओके मैम। और किसी का बाकी स्टूडेंट अटेंडेंस? ऑल ऑफ गिवन? आई थिंक ऑलमोस्ट सबका हो गया। ओके देन चला इन द मीटिंग। मैम थैंक यू। ओके ओके बाय स्टूडेंट। Bye, ma'am.